Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So today we are in the last Saturday's lecture we have discussed vaginal prolapse, the points, the history taking, the investigation, the etiological factors, risk factors. And we have discussed in detail the anatomy of the pelvic floor and the symptomatology and the conservative treatment of the urovaginal prolapse. Now, in this lecture, in the first part, we will discuss the treatment of the urovaginal prolapse, that is the surgical treatment, and in the second part of this lecture, we will start with urogynecology, that is the reclusal instability and the stress incontinence. First of all, we will discuss stress incontinence, and then Wednesday lecture we will discuss reclusal instability. So, we will start with the surgical options for the urovaginal prolapse. As you all know, that the prolapse is of three types: interior compartment, posterior compartment, and the middle compartment. Interior compartment contains bladder and the urethra. The middle compartment contains uterus and the cervix, and the posterior compartment contains the uh, rectum. So, the surgical management of the interior compartment is called interior colporrectomy. Interior colporrectomy means that the repair of the interior vaginal wall. It is performed to repair a cystocele and a cystourethrocoele when there is a large cystocele and the patient has a urinary complaints are more. And on examination, you can view a bulge in the interior vaginal wall. So, this procedure is done for interior cystocele. In procedure, briefly I will explain the procedure not in detail because there is no need for explaining because it is not included in the syllabus. So we will put the patient in the lithotomy position, or area is clean and draped, bladder is emptied, and the same speculum is introduced in the interior and posterior vaginal wall, and the interior lip of the cervix is pulled down during Valsalm forceps. Then we will give inverted T-shape incision on the interior vaginal wall by giving the interior T-shape incision. We will cut through the interior vaginal wall and will separate the both flaps on the right and left sides. Then we will zygocervical ligament, zygocervical ligament is boldly cut and bladder is pushed up as high as possible. Then the bladder supporting stitch supplied, that is called bladder buttressing with delayed absorbable suture uh, with not catgut, the long delayed absorbable suture that is vitral, and if there is a large defect then it is done in two layers and the excess vaginal wall is trimmed off and the bladder and it is closed and the bladder is drained for almost 48 to 72 hours. Complications include infection, bleeding, injury that are the complication of all the surgical procedures, recurrence and the failure. Aftercare include that patient should avoid the risk factors. You all know that excessive weightlifting, coughing and sneezing. Patient is advised to avoid these risk factors. Now in the picture you will see, it will become clear for you. In the first picture you will see that there is the bulge. This is called the cystocele and it is not the normal position. So what they have done, they have given incision on the interior vaginal wall. After giving the incision, they have dissected it and the right and the left flaps of the interior vaginal wall are separated and they retracted laterally and you can now see the bladder wall. Then on the bladder wall we will not these structures will apply supporting sutures, so it will remain supported and we will push it upward as high as possible. Then after applying the after applying the supporting suture, we will cut the redundant tissue of the vaginal wall and then we will restitch it. And now you can see that the bulge is present. Now it is corrected and the bulge is now absent.
is the more detailed pictures. Step by step, first of an skin is given, then the second picture, the vaginal wall is retracted, then you can see the bladder, and the bladder is the surgeon is pushing the bladder up with his fingers. So we will not go through the detail. Then you can see the pubovagal fascia, and the surgeon is applying the supporting stitches on the bladder wall. Then they are stitched, and after applying the supporting wall stitches on the bladder, now the vaginal wall is also closed with the interrupted suture. In the picture, you can see the repaired form in this, and the you can also see the cervical opening. So the pubovagal cervical fascia is plicated by the interrupted suture with number 0 forming catbird using round pointed needle. The lower one or two stitches include the bite on the cervix, thus closing the hiatus through which the bladder herniates. The redundant portion of the vaginal mucosa is cut on each side. The cut margin of the vagina is closed by interrupted sutures in number 0 forming catbird using a needle. The catheter is reintroduced once more to ensure that the bladder is not injured. Toileting of the vagina is done. The vagina is tightly packed with roll balls smeared with antiseptic cream, and a self-retaining catheter is introduced. Now, paravaginal repair is done. How it is done? Because if there is a lateral cystocele is present, then it is done abdominally, vaginally, or laparoscopically. In the For abdominal repair, it involves entering the retropubic space till arcus tendinous fascia is seen. Lateral vaginal is raised to arcus tendinous fascia, and both are approximated with interrupted suture. It is a difficult procedure to correct the lateral cystocele, and it is usually done in abdominal route. Now we will come to the middle compartment, that is which includes the uterus and the cervix. And different procedures are done. They are categorized into two types: uterus preserving and uterus removing procedures. Uterus preserving procedures are obviously that will be done in the patient of the younger age group. The family is not completed, or in some cases in very extreme ages when the patient is not fit for surgery. In extreme of ages, patient is above 80 and she can't bear the long-standing general anesthesia, and then these cases leave what colpoplisis is done. So we will discuss one by one. Hysterosacropexy, this is the procedure of the choice nowadays. It is performed either by open or the laparoscopic route. The name is self-explanatory, hysterosacropexy. You can see that the uterus is attached to the sacrum. You should only know the name of the procedure and what is the basic basic underlying procedure, hysterosacropexy. So if you remember the name, you will explain it yourself. Hysterosacropexy, attaching the part of the uterus or the cervix to the anterior longitudinal ligament of the sacrum. It is performed either by open or laparoscopic route. Mesh is attached to the isthmus of the cervix, and the uterus is suspended by attaching the other part of the mesh to the anterior longitudinal ligament on the sacrum. This is called hysterosacropexy. You can see in the picture the cervix and the uterus is attached to the sacrum. And then comes the Manchester repair of Fothergill's operation. What is this? This is now going to becoming obsolete operation, not done nowadays. But you should know the Manchester repair. It is done in the woman who has not completed her family, and in those patients where the uterine cervical descent or cervical length is more as compared to the uterine descent. Uterus is its normal position, but the cervix has descended and it has become extra long. With lesser degree of uterovaginal prolapse, vaginal elongation of the cervix, and these are done in the patient who wishes to retain the uterus and opt for the vaginal procedure. And this procedure is done with anterior compartment and posterior compartment repair, anterior colporrhaphy, posterior colporrhaphy. Usually the symptoms are not alone. In very less number of cases, there is only uterine descent. Otherwise, there are the combination of symptoms. Patient will have some degree of cystocele, some degree of uterine descent, and some degree of rectocele. So
The procedure is combined, that is the Manchester repair along with anterior colporrhaphy and posterior colporrhaphy. AC and PC stand for anterior and posterior colporrhaphy. So what is done in this procedure? First of all, dilatation of the cervix is done, then anterior colporrhaphy is done, anterior repair is done, the bladder is repaired and it is pushed back, and the supporting stitches are applied on the bladder. Then the isolation and the ligation of the cardinal ligaments is done. Because when the main support of the lower part of the uterus is the cardinal ligament, so and if they have become loose and they have lengthened, then they are cut and tied again on the cervix. The extra part of the cervix is amputated, and we will suture the cardinal ligament to the front of the cervix, and then re-performing the lips of the cervix using the vaginal wall. Now, the third uterus preserving procedure is called leaf force operation. It is done in very elderly woman who is medically unfit for a repair procedure and not sexually active. It is also called colpocolysis. It is an obliterative procedure. Total colpocolysis or total obliteration of the vaginal opening is done in these cases, so that the uterus will not fall outward. Partial colpocolysis in some part of the vaginal epithelium is left unsutured to provide drainage and tract, useful in women with uterus to drain cervical secretions. So, in this leaf-foot procedure, vaginal epithelium is removed, suturing of interior and posterior wall of the denuded vagina is done. Now we'll come to the mesh repair. Mesh repair, in, in this procedure, although the uterus is preserved, it is their place when we will replace the patient's weak tissue with their own tissue. We will replace the weak tissue of the patient with the artificial tissue. Sorry. Four types. Type 1 monofilament mesh repair. The mesh of the choice is monofilament microporous lightweight polypropiline mesh, that is called kind mesh. Main problem with use of the mesh is the mesh erosion. Now we will discuss, these are the four types of the uterine preserving surgeries. Histosacropepsy, Manchester repair, leaf force colpocolysis, and total mesh procedure, when the mesh is implanted in the and the patient's weak tissue is replaced with the artificial mesh. But the side effect is that the mesh erosion. Mesh started eroding in the sideways tissues, and it will create lots of problems. And next comes the definitive surgery. What is definitive surgery? First of all, we will remove the simple procedure that is done, most commonly done nowadays, is the vaginal hysterectomy with anterior posterior repair. When there is a second or third degree uterine prolapse, when the patient has completed the family, she is either menopausal or premenopausal, and she has 4 or 5 children, and she wants to have a definitive procedure, then we will go for the vaginal hysterectomy. Because it is usually done in those patients who can't come for the follow-up, also in the patients who are non-compliant and they want to afford repeated surgeries. Because in the conservative surgery, there are always a chances that the complaint will reoccur again. So, the patients whose family has completed, if someone asks you about the indications of the vaginal hysterectomy, you can the indication of the vaginal hysterectomy will be if the patient has completed a family, she is perimenopausal, postmenopausal, she wants definitive treatment and she can't come for the follow-up again and again. So definitive surgery include vaginal hysterectomy, total abdominal hysterectomy, and sacrocolpopexy. What is this in this procedure? Then vaginal hysterectomy, we go through the vaginal do the hysterectomy, but in total in the sacrocolpopexy, what we will do, we will remove the uterus, the abdominal root, and we will fix the vaginal wall to the sacrum, as the name explains, sacrocolpopexy. First, we have studied sacrohistopexy. Then there's subtotal abdominal hysterectomy and sacrocervicopexy, in which this will remove the body of the uterus and the remaining cervix is attached to the sacrum. Sacrocervicopexy.
Vaginal hysterectomy and plus anterior posterior repair. It is the oldest major procedure since the time of Hippocrates in the 5th century. Newer forms of this operation is the laparoscopic assisted vaginal hysterectomy. अब आप लेप्रोस्कोपिक असिस्टेड वैजाइनल हिस्टेक्टमी और जो है वैजाइनल हिस्टेक्टमी इसमें डिफरेंस क्या है? उसमें डिफरेंस ये है कि वैजाइनल हिस्टेक्टमी इज ऑल डन थ्रू द वैजाइनल along with the anterior and posterior repair. This is the most old of procedures since 15th 5th century and is also very common in Pakistan. Because the laparoscopic surgery is not commonly available everywhere, especially in the small cities, and it is also very expensive. Although it is, surgeons are doing, gynecologists are doing laparoscopic assisted vaginal hysterectomy in the whole nowadays. Some private hospitals, but the cost is very much high. They will charge 2 to 3 lakhs. So it is not the option for every patient. Especially the patient who are non-reporting, vaginal hysterectomy is the procedure of the choice. In the laparoscopic hysterectomy, what we will do, one surgeon will go through the abdominal route and the other surgeon will go through the vaginal route. The abdominal surgeon through laparoscope will apply clamps on the upper 2 clamps of the vaginal hysterectomy that will cut the tubo-ovarian ligament and the uterine artery, clamp the uterine artery, and the vaginal surgeon will through the vaginal route. It will apply clamps on the cardinal and the uterosacral ligament, and then when the upper ligaments are also cut, the uterus will be free, and the vaginal surgeon will remove the uterus through the vaginal. So the new technique is called laparoscopic assisted vaginal hysterectomy. The procedure of the vaginal hysterectomy is that first of all we will do the intercolporaphy. I have explained the intercolporaphy and the interior repair. Then the cervical incision is extended posteriorly along the cervicovaginal junction and the pouch of Douglas is opened. Uterus is delivered interiorly. When the uterus is free, when we have opened both the pouches, yesterday I have explained you both the pouches, uterovesical pouch and the rectouterine pouch and the pouch of the Douglas. So the basic procedure is to open both the pouches. Then the uterus is now free. We will apply the clamp step by step. First clamp is applied on uterosacral and then the cardinal ligaments. Tushes are cut and ligated on both sides. ये आपको प्लीज आना चाहिए कि आपको यूट्रस की अगर सर्जरी की जाए तो कौन से क्लैंप्स लगाए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप. If we are going from the vaginal side, we will first apply the uterosacral and the cardinal ligaments, then uterine artery, and then you will clamp the tubo-ovarian ligament. And if we are going to the abdominal route, then it will be reversed. First of all, we will apply clamp on the tubo-ovarian ligament, then on the we will clamp the uterine artery, then the transfer cervical or cardinal ligament, and last of all the uterosacral ligament. At least आपको ये जिन लोगों ने जो 2 बैचेस जो उन्होंने अटेंड किया वैज्ञानिक उन्होंने तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा कि ये किस तरह हिस्टेक्टमी की जाती है, लेकिन जिनको कॉन्सेप्ट नहीं है, जो अटेंड नहीं कर पा सके इस एपिडेमिक की वजह से, वो प्लीज़ कोई वीडियो जरूर देखें नेट पे ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए. Second clamps involve uterine vessels which are cut and ligated. Third clamp around the wrong ligament, fallopian tube and ovarian ligament is called tubo-ovarian भी कहते हैं, which are cut and ligated. The uterus is removed. Peritoneum is closed by purse string sutures. Enterocele is collected by mechanical caldoplasty. Interior colporaphy is done. Posterior colporaphy is done, and the packing is done, and the patient is catheterized for 1 or 2 days. Now in the picture you can see. These pictures are more easy to understand if you are seeing the live surgery. Now you will in this picture you concentrate on the second picture. You can identify the ligaments. First of all, super round ligament, fallopian tube and ligament of the ovary, that is called the tubo-ovarian. Then uterine artery at the base of the broad ligament, and then the last जो आप देख सकते हैं इसमें जो तीसरा जो स्टिच लगाया हुआ है यूट्रोसेकल पे और मैकन रॉड पे, ये 3 स्टेप्स के अंदर जो है हिस्टेक्टमी की जाती है. उसके बाद वजाइनल जो बॉल है उसे क्लोज किया जाता है. ठीक है जी. अब TH sacrocolpopexy, ये भी एक नया प्रोसीजर. Uterus is removed through abdominal incision, repair of the wall of vagina and attaching a mesh to the wall and suspending into anterior longitudinal ligament on the sacrum. इसमें क्यों वजाइना अगर हम यूट्रस रिमूव भी करते हैं तो वजाइनल वॉल को इसलिए हम उसको
भी अटैच करते हैं सेक्रम के साथ, ताकि जो वॉल्ट है जिसको या हम कहते हैं कि वॉल्ट प्रोलैप्स है, वॉल्ट ऑफ द वजाइना, जो अपर पार्ट ऑफ द वजाइना है जहाँ से भी यूट्रस को अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड द वॉल्ट। तो जब यूट्रस निकल जाती है तो इंटीरियर पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को आपस में अटैच कर दिया जाता है, उसको हम कहते हैं वॉल्ट ऑफ द वजाइना। उसको सपोर्ट देने के लिए ताकि वो बाद में प्रोलैप्स ना हो, तो वो पेशेंट फिर प्रोलैप्स कंप्लेंट के साथ ना आ जाए, वी विल suspend it to inferior longitudinal ligament on the sacrum. Operation is done in case of providentia with complete vaginal inversion or when there is a wall prolapse. तो wall prolapse अगर हो गया है तो उसमें भी हम फिर sacrocolpopexy करेंगे, और अगर complete providentia है जिसका मतलब है कि vaginal walls बहुत ज़्यादा वीक है, उसमें भी फिर हम vaginal walls को भी अगेन जो है वो inferior longitudinal ligament के साथ भी अटैच किया जाएगा. Then third procedure, subtotal abdominal hysterectomy and sacrocervicopexy. This procedure is done with either by abdominal or laparoscopic route, becoming more popular nowadays. Subtotal hysterectomy is done leaving behind the cervix. Mesh is attached to the cervix and on the other side suspended to the inferior longitudinal ligament on the sacrum, as the vagina is not open, so no vaginal scarring. Posterior compartment के लिए जैसा कि anterior compartment इंटीरियर रिपेयर की थी, तो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के लिए पोस्टीरियर कॉल्पोरेफी होगी, इसमें रेक्टोसील है, उसमें भी यही प्रोसीजर किया जा सकता है. इसमें आप देख सकते हैं एंटेरोसील है, वो भी आप नजर आ रही है कि जो कि एंटेरोसील जो है वो पाउच ऑफ डगलस के टॉप में बल्ज करेगी, और रेक्टोसील को भी आप देख सकते हैं कि हाई रेक्टोसील और लो रेक्टोसील. तो रेक्टोसील को गायनोकोलॉजिस्ट यूजली जो है वो सर्जिकली ठीक कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं. एंड फॉर द एंटेरोसील एंड फॉर द हाई रेक्टोसील, बिकॉज देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रेक्टम, इट इज बेटर टू कंसल्ट जो है एंड एनल सर्जन या जो है colorectal surgeon should be consulted for the repair of the enterocele or high rectocele to prevent damage to the intestine or rectum. Posterior colporrhaphy steps, pair of the Ellis forceps at the lower end of the labia minus and a third on the posterior vaginal wall. इसको आप छोड़ दें, इसको मैं कभी आपको जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि ये आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर को आप देखें, इसमें ये बल्ज है सारा, पोस्टीरियर वैजिनल वॉल बल्ज है, ठीक है जी. और आप इस पिक्चर में आप देखें कि इसमें उन्होंने सारा फोटोग्राफ करके तो नॉर्मल एनाटॉमी जो है वो अच्छे तरीके से रिस्टोर कर दिया. स्टेप्स आपको ज़्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है, आपकी ये वो स्टेटस में दिखेगी, सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि वैजिनल वॉल को साइज करेंगे, ठीक है जी, उसी तरह रिफ्लेक्ट करेंगे, ब्लैडर को पुश करेंगे, पैरा वैजिनल टिश्यू होता है जो उसको रिपेयर करेंगे, सपोर्टिव लगाएंगे ताकि रेक्टल सपोर्ट है. और उसके बाद उसी तरह रिटेंडेंट जो वैजिनल टिश्यू है जो स्टिचिंग की वजह से हो गया है उसको कट करके उसको दोबारा स्टिचेस लगा देंगे. Post-operative care is very important. Parental fluids until bowel sounds are done. Early oral fluids are now advocated. Antibiotic sedative metronidazole for 24 hours IV. Indwelling catheter for 48 hours. Vaginal packing for 24 hours. Early ambulation and DVT prophylaxis. कुछ बातें तो उसमें कॉमन है जो घर सर्जरी में फॉलो की जाती हैं, और कुछ बातें जो हैं वो इससे रिलेटेड है माई स्पेसिफिक सर्जरीज. अब enterocele क्या है? It is a herniation of the upper third of the posterior vaginal wall, and it contains omentum or even loops of small bowel. Always look for and correct enterocele during prolapse repair. Prophylactic correction during vaginal or abdominal hysterectomy. Posterior pouch को prepare किया जाता है ताकि बाद में enterocele ना बन जाए. ठीक है जी, इसके लिए आपको जरूरत नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए नाम के में कर्ल्डोप्लास्टी की जाती है पोस्टीरियर पाउच को खोल के फॉर द रिपेयर ऑफ द एंटेरोसील. ये डिटेल आपके लिए इंक्लूडेड आपके सिलेबस में. अच्छा जी, ये एक जो प्रोसीजर है वॉल्ट के लिए दिया जाता है, सेकेंडरी वॉल्ट प्रोलैप्स. अगर हिस्टेक्टमी के बाद पेशेंट दोबारा आए कि जिनमें प्रोलैप्स हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी जो वैजिनल वॉल्स हैं वो प्रोलैप्स हो गई. Prolapse of the vaginal wall following hysterectomy. It is due to failure to recognize and correct enterocele during hysterectomy. It can be vaginal eversion, wall suspension, cystocele or rectum. कोई भी वॉल हो सकती है, इंटीरियर पोस्टीरियर भी हो सकती है, वॉल भी हो सकता है. रिपेयर जो की जाती है वो sacrospinous colpopexy, anterior posterior colporrhaphy की जाती है. Preferred in old and less healthy women. Abdominal approach से sacrocolpopexy की जाती है. उसमें क्या किया जाता है कि preferred in young women whose resultant vagina is longer.
इसमें सेम यही करेंगे, एब्डोमिनल वजाइनल रूट से जो वॉल ऑफ वजाइना है उसको हम लिफ्ट करके उसको सेक्रम के साथ अटैच कर देंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया हुआ जो है, ये मैश लगा के तो जो है वो उसको एलिवेट करके तो जो है वो मैश इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ वाइज एब्डोमिनल मेथड ऑफ एपिकल सस्पेंशन, और उसको जो वजाइना है उसको लिफ्ट करके उसको सेक्रेट प्रोमोनटरी के साथ अटैच कर दिया। ठीक है जी। पिंक कलर का बीच में है जिसके ब्लैक वाइट कलर का एक जो आपको वाइट कलर ब्लैक में वाइट शेप जो है थ्रेड है दैट इज द मैश, और इसके मैश को वजाइनल वॉल से अटैच करके एंड द अदर एंड इज अटैच टू द सेक्रेट प्रोमोनटरी। ठीक है जी। लॉन्ग आर्म इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट ऑफ द सेक्रम एंड शॉर्ट आर्म along to the इंटीरियर posterior vaginal wall, पिक्चर में क्लियर नजर आ रहा है। अच्छा, अब नली पेरस वुमन में क्या किया जाता है? नली पेरस वुमन में इसको लाइकली स्पाइना बाइफिडा और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, यूट्राइन वजाइनल प्रोलैप्स में कंप्लीट वजाइनल इन्वर्जन, mesh is required for repair, falling repair, avoid vaginal delivery, perform elective cesarean section। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर नली पेरस में आप रिपेयर कर रहे हैं ड्यू टू प्रोलैप्स, नेक्स्ट टाइम शी शुड अवॉइड नॉर्मल डिलीवरी, इलेक्टिव cesarean सेक्शन होना चाहिए, अदरवाइज आपकी जो रिपेयर है वो फेल हो जाएगी ना। आपके लिए काफ़ी याद करने के लिए दैट्स ऑल फॉर vaginal prolapse, and now we will move to our next topic that सो यूरोगायनोकोलॉजी जो है वो भी एक डिफिकल्ट टॉपिक है, कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। ठीक है जी, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसमें मैं कुछ इसकी पेजेस भी आपको दिखाऊंगी ताकि आपको इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो समझ आ जाए अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि ये मुश्किल टॉपिक है। लैब्स के टॉपिक पे तो पेशेंट देख लोगे, आपको हर नहीं देख सकोगे क्योंकि आपको कोरोना वाली क्लास के लाओगे, कोरोना वाली फाइनल ईयर, लेकिन जो है वैसे जो है उसे कहते हैं बुक में भी आपकी काफ़ी अच्छी चीज़ें दी हुई हैं, उससे भी आपको हेल्प मिल सकती है। तो स्टार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो एक तो पहले आपको जो है टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, क्या क्या टर्मिनोलॉजी। ठीक है जी, इसमें जो टर्मिनोलॉजीज हैं डिफरेंट क्लिनिकल कंडीशंस हैं या डिफरेंट जो यूरोगायनोकोलॉजी कंप्लेंट के साथ आता है वो है जी इनकॉन्टिनेंस, बॉर्डिंग डिफिकल्टीज, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स हमने अच्छी डिटेल में डिस्कस कर ली है, फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड यूरिनरी हिस्टोरिस, ये डिफरेंट जो है इन्फेक्शनल कंप्लेंट्स। उसके बाद हम इनकी फिर एनाटमी डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये एनाटमी मैं बार बार इसलिए डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ क्योंकि एनाटमी के साथ ही ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी, अदरवाइज इट विल बी इम्पॉसिबल। तो इट इज़ कम्पोज ऑफ टू लेयर लिबेटर एंड आई, ये तो अब आपको पता चल गया। मीडियल फाइबर्स ऑफ लिबेटर एंड आई passes beneath the bladder, runs laterally to the urethra into which some of its fibers inserted। इसका मतलब है कि यूरेथ्रा को भी लिबेटर एंड आई की कुछ फाइबर्स सपोर्ट करती हैं। The loop found with the fibers on the opposite side maintains the angle between the posterior aspect of the urethra and the bladder phase। तो दोनों साइड्स के फाइबर जो हैं वो यूरेथ्रा के एक लूप बनाते हैं and that provide the support to the urethra। During maturation, this loop relaxes to allow urethra and neck of bladder to descend and open। ये बेसिक ये आप लिबेटर एंड आई की पिक्चर देख सकते हैं, पेल्विक मसल्स की सारी एरिया। ठीक है जी, ये पिक्चर मैंने आपको कल भी दिखाई थी, आप देख सकते हैं कि वो सर्वाइकल लिगामेंट किधर है, ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट किधर है, ब्लैडर का क्लोज रिलेशनशिप है विद द पेल्विक फ्लोर लिबेटर एंड आई। ठीक है जी, ये अगेन उसकी पिक्चर है लिबेटर आई की, पेल्विक मसल में बार बार कह रही हूँ लिबेटर एंड आई आपको टिप्स पे होना चाहिए, ये सवाल बार बार एनाटॉमी में आता है। ठीक है, ये मत समझिए कि ये नहीं आएगा, इसलिए प्लीज लिबेटर एंड आई एनाटॉमी जो है वो अच्छी तरह से पढ़ें। So physiology क्या है maturation की? Fundamentally a spinal reflex facilitated or inhibited by the higher central cortical centers। Normal जो bladder capacity है it is maximum is 500 ml, 350 to 500 ml। First sensation to void become appreciated when the bladder is filled up to the level of 150 ml।
No diffuser contraction during filling phase. The diffuser muscle है, that is the muscle of the bladder, it will not contract idly during the filling phase. पोस्ट मिक्चरेशन यूरिन वॉल्यूम शुड बी लेस देन 50 ml. अगर ये 50 ml है, पेशेंट यूरिन करके आए हैं, पोस्ट वर्ड यूरिन अगर अल्ट्रासाउंड पे चेक किया जाए तो अगर इट शुड बी लेस देन 50 ml, अगर 50 ml से ज़्यादा है तो उसका मतलब देयर विल बी incomplete emptying of the bladder and there should be no incontinence norms. ये तो एक नॉर्मल आइडियल सिचुएशन है फिजियोलॉजी ऑफ द मिक्चुरेशन. ठीक है जी. आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन कंट्रोल हो रहा है, कौन कौन सी नर्व्स हैं. इसमें पैरासिम्पैथेटिक है, अपोडेंडल नर्व का रोल है. ठीक है जी. रिट्रूजल मसल आप देख सकते हैं, पेल्विक फ्लोर देख सकते हैं, फास्ट एंड स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं. एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी आपको नजर आ रहे हैं, इसमें स्लो ट्विच फाइबर्स हैं. पेल्विक जो ब्लैडर से सेंसेशन जाती है स्पाइनल कॉर्ड में. ठीक है जी. पैरासिम्पैथेटिक और उसके बाद पोडेंटल नर्व जो सोमैटिक, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन. और उसके बाद जो हायर सेंटर्स हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स वॉलंटरी कंट्रोल सेंटर. ठीक है जी. तो ये बेसिकली सारा जो है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है. इसमें डिफरेंट नर्व्स का, स्पाइनल कॉर्ड का और हायर सेंटर्स का रोल है. इसलिए अगर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है हो जाती है तो पेशेंट को जो है वॉइडिंग और वो यूरिन कंट्रोल उन सब में भी प्रॉब्लम हो जाता है. So regulation of the bladder. First of all, pressure builds up in the bladder. ठीक है जी. इसमें आप इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी देख रहे हैं. उसके बाद क्या होता है, pelvic nerve से sensation जाती है parasympathetic. This causes the contraction of the dorsal muscle while the pelvic nerve. तीन नर्व्स हैं pelvic nerve का S2 S3 4 पे. hypogastric nerve पे इसका क्या रोल है, इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्सेस ड्यू टू डिक्रीज sympathetic stimulation. और पोडेंटल नर्व जो है external sphincter back करती है. The external sphincter relaxes due to voluntary decrease in the stimulation. ठीक है जी. मेनली जो है ये pelvic nerve का रोल है, hypogastric का है और पोडेंटल नर्व के. पोडेंटल नर्व जो है वो सिंपैथेटिक में आ जाती है और मेन इन्फ्लुएंस है पैरासिम्पैथेटिक. अब इसमें आप देख सकते हैं पूरा मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इस पिक्चर में बताया हुआ है. जब ब्लैडर फिलिंग स्टार्ट होती है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो हैं वो सेंसरी एफर्ट्स लेके जाते हैं टू द ब्रेन स्टेम. ठीक है जी. वहाँ से क्या होता है, वहाँ से पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया एक्टिवेट होते हैं, दे कम टू द रेट्रोजर मसल. उसके बाद इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो हैं उनकी भी आप नर्व सप्लाई देख सकते हैं टू द सिम्पैथेटिक गैंग्लियन एंड टू द ब्रेन स्टेम. So involuntary loss of urine that is clinically demonstrable and poses social and hygienic problem. आज हम stress incontinence डिस्कस करेंगे. ऑब्वियसली ये तो सबेटा सोशल और हाइजीनिक प्रॉब्लम है. पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो खत्म हो जाती है. इट हैज इम्पैक्ट ऑन फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग. ये ऐसी कंप्लेंट है कि पेशेंट आपको किसी डॉक्टर के पास भी किसी को भी बताते हुए भी मेरे लेफ्ट हैंड होगी, लेकिन उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी. तो इनकॉन्टिनेंस जो है उसकी 15 to 44 ईयर में 5% चांस है. इंक्रीजिंग एज के साथ क्योंकि पेल्विक फ्लोर वीक हो जाता है, पोडेंटल नर्व डीनर्वेशन हो जाती है, ईस्ट्रोजन विड्रॉ हो जाता है, तो उसकी वजह से ये जो है वो इंक्रीज करती जाती है. तो अबव 45 to 64 10%, more than 65 20%, एंड रेजिडेंट्स ऑफ नर्सिंग होम जो इससे भी ज़्यादा एज की हैं, जो कि अनअटेंडेड फीमेल्स हैं विदाउट फैमिली, लिविंग विदाउट फैमिली इन द नर्सिंग होम, they have an incidence up to 40%. तो सिम्टम्स जो हैं वो क्या है, सिम्टम भी मरीज से पूछना एक मुश्किल काम है क्योंकि यूरिनरी सिम्टम्स जो हैं उनके पेशेंट आपस में काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं. तो अर्जेंसी क्या है, सडन डिजायर टू वॉइड, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, इनवॉलेंटरी लॉस ऑफ यूरिन associated with strong desire to void, and overflow incontinence occurs without diffuse activity on over distendation of bladder. इसमें क्या होता है कि पेशेंट को सेंसेशन होती ही ब्लैडर फुल होता जाता है, उसके बाद अचानक ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस स्टार्ट हो जाती है. फ्रीक्वेंसी इज द पैसेज ऑफ यूरिन फॉर मोर देन 7 times per day or 1 to 2 times night. फ्रीक्वेंसी तब होगी अगर मरीज को दिन में 7 से ज़्यादा दफ़ा यूरिन आएगा और रात में भी उसको 1-2 दफ़ा या उससे ज़्यादा. इसमें जो दूसरी चीज़ें आपने बाकी जनरल डिजीज में डायबिटीज़ में अगर वो डायबिटिक अनकंट्रोल है तो उसमें जो है वो उसकी उससे ज़्यादा ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी. लेकिन अगर डायबिटीज़ नहीं है, सिर्फ ये वाले यूरिनरी सिम्टम्स हैं, तो फिर इसको इवैल्यूएट करना है. क्लासिफिकेशन ऑफ द यूरिन इंकॉन्टिनेंस, यूरेथ्रल कॉजेज इंक्लूड यूरेथ्रल स्फिंक्टर इंकॉन्टिनेंस, जिसको हम जनरल स्ट्रेस इंकॉन्टिनेंस भी कहते हैं, रेट्रूजर ओवर एक्टिविटी, रिटेंशन विद ओवरफ्लो, congenital
congenital causes, extraurethral causes, and fistula. So द मेन टाइप्स ऑफ इनकॉन्टिनेंस में जो सबसे जो मेन टाइप्स आती हैं उसमें ये तीन ही आती हैं। मेन में जो सबसे जो कॉमन है बस आती है स्ट्रेस कॉन्टिनेंस, जिसमें कि स्फिंक्टर है, यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, वो वीक हो जाएगा। उसके बाद जो है डिफ्यूजर ओवर एक्टिविटी या अर्ज इनकॉन्टिनेंस, उसमें 22%, और मिक्स जो है जिसमें कि स्ट्रेस के भी एलिमेंट है और उसका भी एलिमेंट है, उसमें 29%। इसमें आप देख सकते हैं ओवरफ्लो में क्या है कि यूरेथ्रल ब्लॉकेज, ब्लैडर अनएबल टू एम्प्टी, ब्लैडर डिस्टेंट होता जा रहा है, उसकी वजह से ओवरफ्लो हो जाएगा। टेस्ट में क्या है, रिलैक्स पेल्विक फ्लो वीक हो गया, इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर जब भी होगा इट विल बी ट्रांसमिटेड टू द यूरेथ्रा, और जो है यूरेथ्रल वीकनेस है तो जिसकी वजह से वो पेशेंट विल हैव अ प्रॉब्लम ऑफ इनकॉन्टिनेंस। और उसके बाद अर्ज इनकॉन्टिनेंस क्या है, ब्लैडर ओवर सेंसिटिविटी फ्रॉम इन्फेक्शन, यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अर्ज इनकॉन्टिनेंस है डिफ्यूजर ओवर एक्टिविटी की वजह से भी अभी प्रॉपर वो फिल नहीं भी हुआ। इसमें आप देख सकते हैं प्रॉपर अपनी कैपेसिटी पे फिल नहीं भी हुआ होगा, लेकिन पेशेंट को एकदम से डिजायर पास शुरू हो जाएगी तो पास से यूरिन, अगर पास नहीं करेगी तो देयर विल बी इनकॉन्टिनेंस। ठीक है जी, ये वो दोबारा इसमें जो फाइबर्स होते हैं एंटी मस्कुलर फाइबर्स होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक, तो इसमें डिफरेंट ड्रग्स एक्ट करती हैं, बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये भी वही डिस्पोजल मसल और उसका रिलेशनशिप है सेकंड ड्रग्स के साथ। ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की पिक्चर दिखाई गई है कि जैसे एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा तो जो पेल्विक फ्लोर उनकी वीक है तो वो जो यूरेथ्रा जो है वो पेल्विक फ्लोर से हर्निएट करके जो पेरिनियम में आ जाएगा और वहाँ से यूरिन लीकेज स्टार्ट हो जाएगी। सो involuntary, what is the urodynamic stress incontinence? It is called the involuntary leakage of urine during increased abdominal pressure in the absence of user contraction. ठीक है जी, इसमें जो आपके लिए बेसिकली आपको डिफ्यूजर इंस्टेबिलिटी या डिफ्यूजर ओवर एक्टिविटी और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में मेन फर्क समझ लो, वो आपके लिए बड़ा जरूरी समझना। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि डिफ्यूजर मसल बिल्कुल ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर रहा, कुछ नहीं है उसको, लेकिन क्योंकि जो है स्फिंक्टर जो है वो वीक हो गया, तो स्फिंक्टर जैसे वीक हो गया है उसकी वजह से पेशेंट अगर खांसती है, हैवी वेट लिफ्टिंग करती है, ज्यादा सीढ़ियां चढ़ती है, तो देयर विल बी इनवॉलंटरी लीकेज ऑफ यूरिन ड्यूरिंग इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर इन द एब्सेंस ऑफ डिफ्यूजर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है जी, इसमें आप देखें एनाटॉमी, हर चीज अपनी जगह पे पहली पिक्चर में सेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वो जो है ब्लैडर वीक नहीं हुआ हुआ। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं इन द डायग्राम अबव द यूरेथ्रा इज नो लॉन्गर सपोर्टेड इन द करेक्ट पोजीशन। यूरेथ्रा जो है वो वीक हो के पेल्विक फ्लोर क्योंकि लिवेटर एनाई वीक हो गया है तो वो भी नीचे फॉल डाउन कर गया है, जिसकी वजह से जैसे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर रेज होगा तो सम यूरिन विल लीक ऑटोमेटिकली। Causes of stress incontinence: damage to the nerve supply of the pelvic floor and urethral sphincter. Direct damage, अगर nerve supply काम नहीं करी, obviously urethra काम नहीं करेगा. Damage to the muscle of the pelvic floor and endopelvic fascia and ligament, especially as a result of prolonged second stage of labor, large babies and instrumental delivery. ये जो है हमारी खवतिन में बड़ा कॉमन है। ठीक है जी, ये सेकंड वाला मसला है। Damage to nerve supply, pelvic floor, urethral sphincter को उसे कहते हैं ना देखा नहीं जाता, लेकिन सेकंड फैक्टर बड़ा कॉमन है। उसके बाद आ जाता है congenital causes, altered condition, इसकी वजह से भी जो स्फिंक्टर है वीक हो जाता है, उसके लिगामेंट्स जो है वो वीक हो जाएंगे और जो है स्फिंक्टर प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। उसके बाद आ जाती है क्रॉनिक कॉजेज लाइक ओबेसिटी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एंड कॉन्स्टिपेशन। एसोसिएटेड स्टैंडिंग में लीड टू दिस प्रॉब्लम। रिपीटेड जो रेज एब्डोमिनल प्रेशर है उसकी वजह से पेल्विक फ्लोर वीक हो जाते हैं। देन मेनोपॉजल चेंजेस इन जेनिटल ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फिजियोलॉजी ऑफ डिफ्यूजर इंस्टेबिलिटी। ठीक है जी, अब इसमें क्या है, इंक्रीज इन यूट्रल प्रेशर, फर्स्ट सेंसेशन टू वॉइड, वो अपन बता दिए कि फर्स्ट सेंसेशन जो वॉइड बिकम जो अप्रिशिएट की जाती है वो 150 ml की जाती है। अब फिलिंग फेज में सडन डिफ्यूजर कॉन्ट्रैक्शन विद इंक्रीज इंट्रा वेजाइकल प्रेशर। इसमें क्या होगा, अभी फिलिंग हो रही है लेकिन जो डिफ्यूजर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाता है, दिस इज कॉल्ड अर्ज इनकॉन्टिनेंस एंड डिफ्यूजर ओवर एक्टिविटी। और जैसे ही वो क्योंकि वो डिफ्यूजर
डिफ्यूजर कॉन्ट्रैक्ट करना हो जाएगा तो इनवॉल्युंटरी रिलैक्सेशन ऑफ द यूजुअल स्फिंक्टर अकर एंड पेल्विक फ्लोर, क्योंकि डिफ्यूजर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो सिग्नल जा रहे हैं। नॉर्मल फ्लेक्चुरेशन रिफ्लेक्स में जब डिफ्यूजर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो स्फिंक्टर जो है पेल्विक फ्लोर रिलैक्स होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है डिफ्यूजर इंस्टेबिलिटी में कि वो फिलिंग फेज में ही कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा वक्त से पहले। अपनी नॉर्मल फिलिंग फेज में जो उसकी कैपेसिटी है मोर देन 350 to 500 ml में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। वो हो सकता है 150 भी कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दे, वो 100 ml का यूरिन हो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करे तो मरीज क्या कहेगी कि बार बार मुझे यूरिन वॉशरूम जाना पड़ता है, बार बार मुझे यूरिन आता है। ठीक है, वो भी एक जो है डिफ्यूजर इंस्टेबिलिटी को शो करता है, ये डिफ्यूजर ओवर एक्टिविटी। ठीक है जी, इसमें आप देख सकते हैं अर्ज स्ट्रेस में क्या फ़र्क है और अर्ज में क्या फ़र्क है। ब्लैडर ओवर एक्टिव ब्लैडर में ये सारा उसके डिफरेंट आपकी बुक्स में भी डिफरेंट नाम थे। ये फिर कोई एक्सप्लेन करने के लिए ताकि मेन आपको फ़र्क पता चल जाए डिफ्यूजर ओवर एक्टिविटी में या अर्ज में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज इनवॉलंटरी ब्लैडर लीकेज। Second, marriage incontinence result in the uncontrollable need to move the bathroom. Patient कहेगी उसका अमाउंट ऑफ यूरिन कम होगा लेकिन थोड़ा सा यूरिन लीक हो जाएगा, एकदम से वो चीज़ है एमरजेंसी स्टार्ट हो जाएगी टू सर्च फॉर द बाथरूम। ठीक है जी, तो वो बस उसको जल्दी होगी कि मैं फौरन वॉशरूम में जाऊँ, लेकिन जो अमाउंट ऑफ द यूरिन पास होगा वो कम होगा। क्यों? सिर्फ इसलिए कि जो है उसका मसल जो है वो ओवर एक्टिव हो गए, वो बार बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। Overflowing continence, it appears as frequent constant dripping from the urethra। ये जो है ये मेनली सीएनएस डिसऑर्डर की वजह से ब्लैडर की जो है नर्व सप्लाई वो इफेक्ट होती है। ब्लैडर जो है वो पहले ओवरफ्लो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता और फिर जो है ड्रिपिंग स्टार्ट हो जाती है। Abnormal descent, now we will discuss pathophysiology। Abnormal descent of the bladder neck and proximal urethra causing unequal transmission of the intra-abdominal pressure to the proximal urethra. So reversal of normal pressure gradient between the bladder and the urethra resultant negative urethral pressure. Intra-urethral pressure lower than the vesical pressure की वजह से ड्रिपिंग स्टार्ट हो जाती है कि ब्लैडर का प्रेशर बढ़ जाता है और जो है उसका यूरेथ्रा का प्रेशर कम हो जाता है। अदरवाइज यूरेथ्रल प्रेशर इज मोर देन द डिफ्यूजर प्रेशर। किस किस में हो सकता है? प्रीवियस सर्जरीज में हो सकता है, अगर यूरेथ्रल सर्जरी भी है या पेल्विक सर्जरी भी है जिसमें कि यूरेथ्रल डैमेज हो गया हुआ है। रेडियोथेरेपी, मेनोपॉजल वुमेन, एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी, laxity of the suburethral support is normally provided by the vaginal wall, endopelvic fascia, arc of tendinous fascia and levator muscles acting as a single unit, leading to ineffective contraction during physical straining, leading to incontinence. सिम्टम्स क्या होंगे? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी अर्ज इनकॉन्टिनेंस, जेनिटल प्रोलैप्स भी हो सकता है पेशेंट को, क्योंकि ये पूरे सिम्टम्स जो हैं वो उसके साथ अकर करते हैं प्रोलैप्स कर। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे? हम इसको डॉट की पोजीशन में लिटाएंगे, ब्लैडर उसका फुल होना चाहिए। हम पेशेंट को कहेंगे कफ करें, जैसे वो कफ करेगी डायरेक्टली विजुअलाइज ब्लैडर को गई। During the general examination after emptying the bladder, you will assess hysterosis, movement descent, channel capacity and ability to elevate bladder neck. Confirmation, diagnosis कैसे करना है? Suspicion of history, clinical examination. Confirmation of the diagnosis is usually done by urodynamic studies. वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। Aerodynamic studies क्या होती हैं, किस तरह की जाती है। Other tests include urine examination, rule of infection, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे यहाँ बड़ा कॉमन है। इसलिए कोई भी पेशेंट जो है यूरिनरी कंप्लेंट के साथ आए तो फर्स्ट ऑफ लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन विल ऑलवेज बी कंप्लीट यूरिन। यूरिनरी सिम्टम्स पूछते हैं। अक्सर पेशेंट जो हैं उनको से कहते हैं ये यूटीआई अंडरलाइन होते हैं। उसके अलावा ये ब्लड शुगर, ये भी डायबिटीज से बड़ी कॉमन है। तो ये आपने तो बेसिकली हर मरीज में रूल आउट कराने अगर पेशेंट हिस्ट्री देंगे नहीं। अदर टेस्ट तब कराएंगे जब ये पेशेंट की हिस्ट्री होगी और किसी की डिजीज की सिस्टमिक डिजीज। इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक लंबी लिस्ट होती है इसमें। ठीक है, पहले आपकी जो बुक थी उसमें काफ़ी लंबी चौड़ी थी, इस बुक में आपके लिए आसानी हो गई है, काफ़ी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कवर डाउन कर दी है। इट इज एक्सटेंड फ्रॉम द सिंपल टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स and the investigations are done according to the clinical findings of the patient. A streamlined yet meticulous investigation should be done.
Urodynamic studies provide accurate diagnosis of disorders of respiration both regarding lower urinary tract and pelvic floor function. ठीक है जी, में जो सिंपल इन्वेस्टिगेशन है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो आपकी बुक में भी लिखी हुई है। सबसे पहले तो मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन ऑफ यूरिन टू लॉट इन्फेक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यूरिनरी डायरी, वो क्या चीज बला है? यूरिनरी डायरी में ये बला है कि रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट इनटेक आउटपुट, अर्जेंसी, लीकेज एंड प्रेसिपिटेटिंग इवेंट्स फॉर 3 to 5 days फॉर असेसमेंट ऑफ द functional bladder capacity, altering fluid intake and monitoring conservative features. यूनिट डायरी में क्या कहते हैं, मरीज को कहते हैं जी आप पूरा हफ्ते का अपना रिकॉर्ड लेके आए। आपकी बुक में भी पिक्चर बनी हुई है, आपने सारा दिन कब कब पानी पिया, कब कब चाय पी, कब कब कॉफी पी, ठीक है, किस वक्त आपको वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ी, कितनी कितनी देर के बाद, कितनी दफा आपका यूरिन लीक हुआ, कितनी दफा आपको वॉशरूम जा सकी। तो ये सारी जो है डिटेल आपने अपनी डायरी में लिखनी। इससे आपको आइडिया हो जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि यूरिनरी सिम्टम्स को डिफरेंशिएट करना खासा मुश्किल है बिटवीन डिफ्यूजर ओवर एक्टिविटी या ओवर एक्टिव ब्लैडर एंड स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस या मिक्स सिम्टम्स। कुछ लोगों में मिक्स सिम्टम्स होते हैं, कुछ काफी कम पेशेंट होते हैं जो कि बिल्कुल एक तरफ जो है वो पॉइंट कर रहे हैं ना। तो अक्सर जो होता है कि पीछे मिक्स पिक्चर आती है। तो इन टेस्ट की वजह से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि पेशेंट किस कैटेगरी में फिट इन होती है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जो कि ये है सिंपल टेस्ट है, जिनमें कुछ ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़नी। पेशेंट अगर कंप्लायंट है, समझदार है, तो वो इससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। पेयर टेस्ट क्या होता है? पेशेंट wears pre-weighted sanitary towels followed by intake of 500 ml of water and rest for 15 minutes. After a series of defined maneuvers, paired is reweighed. A urine loss of 1 gram is significant. इसकी सिंपल ये समझने की बात है कि पेयर टेस्ट है, पेशेंट को प्री वेट टेस्ट दिए जाते हैं। एक घंटे का होता है, 24 घंटे का ये टेस्ट होता है, ठीक है जी। उसको वेट करके तो उसके बाद उसको सारा दिन पेशेंट अपनी नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म करती रहेगी। जो अच्छे रिजल्ट है वो 24 आवर्स के। एक आवर में इतनी ऑब्जर्वेशन जो है क्लियर नहीं होती, उतना डेफिनेटली डायग्नोसिस पर आप नहीं पहुंच सकते, ठीक है जी। तो जो 24 आवर्स का वो बेहतर है, पेशेंट पानी भी पीती रहेगी, अपना नॉर्मल एक्टिविटीज भी करती रहेगी, और जितना यूरिन ऑफ लीकेज है आफ्टर 24 आवर्स उस पैड को वेट करके देख लेंगे कि उसमें कितना यूरिन लीक हुआ है। अच्छा, उसके बाद सिस्टोस्कोपी भी की जा सकती है अगर कोई इसमें ब्लैडर में कोई लीजन है, ठीक है जी। अल्ट्रासोनोग्राफी भी हेल्प है, इसमें आप पोस्ट यूरिन देख सकते हैं। अगर पेशेंट कह रही है बहुत ज़्यादा यूरिन आया, इसकी इनकम्प्लीट एम्पटिंग होती है, और अगर वो 50 उसके बाद अल्ट्रासाउंड के बाद जो है 50 ml यूरिन फिर ज़्यादा है, तो उसका मतलब है कि उसका इनकम्प्लीट एम्पटिंग ऑफ द ब्लैडर है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड के हमारे को पेल्विक ट्यूमर पता चल सकते हैं, कोई और एसोसिएटेड रीनल पैथोलॉजी भी पता की जा सकती है, तो ये भी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन में आएगी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है यूरोडायनामिक स्टडीज। यूरोडायनामिक स्टडीज जो है उसमें यूरोफ्लोमेट्री, सिस्टोमेट्री, वीडियो सिस्टोयूरोग्राफी, इंट्रावीनस यूरोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, MRI, सिस्टोयूरोस्कोपी, लेकिन ये जैसा इन्वेस्टिगेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इसके आपको बता। सबसे पहले तो यूरोडायनामिक स्टडीज में जो है हम सिस्टोमेट्री, ये सिस्टोमेट्री की मशीन जो यूरोगायनेकोलॉजिकल सेंटर्स हैं उनमें ये किया जाता है। अच्छा, इस टेस्ट का प्रॉब्लम ये है कि ये एक मुश्किल टेस्ट है, ठीक है। पेशेंट के लिए बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन होती है इस टेस्ट को कराना, इसलिए ये फर्स्ट चॉइस नहीं है। इसको हम अपनी एग्जाम में भी फर्स्ट चॉइस ना लिखा के, आपके बुक में उन्होंने क्लियर कट लिख दिया है कि पहले आप सिंपल इन्वेस्टिगेशन कराएं, फिर आप उसको ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जैसे पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस और जो है ब्लैडर रीट्रेनिंग एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर ये सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं, देन फॉर द सर्जरी यू विल गो फॉर द यूरोडायनामिक स्टडीज, ठीक है जी। यूरोडायनामिक स्टडीज में क्या करते हैं? इसमें क्या करते हैं कि पेशेंट के जो है एक यूरेथ्रा में डाल जाते हैं प्रेशर कैथेटर, और एक डाल दिया जाता है, उससे कहते हैं इसमें लिखा हुआ है वजाइना में, लेकिन यूजली जो है रेक्टम में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है जी। अच्छा, और उसके बाद क्या किया जाता है कि ब्लैडर को आर्टिफिशियल फिल किया जाता है। उसको जो फिल किया जाता है तो फिर आपको उससे प्रेशर से आपको पता चल जाता है जैसे से ब्लैडर फिल हो रहा है किस वक्त पे डिफ्यूजर ओवर एक्टिविटी स्टार्ट हुई, ठीक है। तो उससे पता चल जाता है कि क्योंकि आपको मसल्स का जो प्रेशर है वो साइकिल प्रेशर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि किस वक्त जो है डिफ्यूजर प्रेशर इंक्रीज करना शुरू हो गया है। 150 पे हो गया, 200 पे हो गया, 250 पे हो गया, या 350 ml के ऊपर।
ठीक है। उसके बाद फिर जब क्लियरिंग फेज के बाद पेशेंट मूव अराउंड करती है, कैथेटर अंदर ही होते हैं, उसके बाद अगर वो चलेगी फिरेगी खांसेगी तो उसमें फिर हमने जो है यूरेथ्रल प्रेशर और इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट किया जाता है। ठीक है जी। नेचुरल फीलिंग यूरोडायनामिक्स थ्री फील इन वाइड सिस्टोसिल, इसमें आप देख सकते हैं इंट्रावजाइकल प्रेशर का ग्राफ आ रहा होता है, एब्डोमिनल प्रेशर का आ रहा होता है, और उसके बाद हम प्रेशर जो है वो कैसे मेजर करते हैं, साइकिल प्रेशर माइनस एब्डोमिनल प्रेशर। ठीक है जी। ये सारा सिस्टोमेट्री की पिक्चर है। इसमें क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ये पेशेंट को उसके ऊपर वो है कमोड है, उसके ऊपर बिठा के उसमें पॉलिन कैथेटर डाल के तो ये टेस्ट किया जाता है, एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है जी। ये जो टेस्ट है ये सबसे आखिर में किया जाता है। अब ट्रीटमेंट क्या है यूरोडायनामिक्स टेस्ट इनकॉन्टिनेंस का, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है। सबसे पहले तो आ जाता है लाइफस्टाइल चेंजेस, रिस्ट्रिक्ट इन फ्लूइड टेक ऑफ फ्लूइड लाइक लो इनटेक ऑफ टी कॉफी। ठीक है जी। अगर उसको वो इनकॉन्टिनेंस हो रही है आप उसको उसका क्योंकि आपने उसका डायरी ली है उससे पता चल जाएगा कि उसने अगर शाम को 8-9 बजे उसने कॉफ़ी पी ली है चाय पी ली है तो उस चीज़ों को ऑल्टर किया जाए। ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है डाइट मॉडिफिकेशन मेडिकेशन। अगर बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है ऑब्वियसली पेशेंट कोई डायरेटिक्स पे है तो ज़ाहिर है उसकी कंप्लेंट बार बार होगी। ठीक है। उसके बाद ट्रीट क्रॉनिक कफ नीड कॉन्स्टिपेशन, जो भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं एंड दे आर सेम एज फॉर द प्रोलैप्स दे शुड बी ट्रीटेड। प्रिवेंशन कैसे करनी है, शॉर्ट एंड सेकंड स्टेज ऑफ डिलीवरी, रिड्यूस रिस्क ऑफ ट्रॉमेटिक डिलीवरी, रोल ऑफ pelvic floor exercise before and after birth of the baby, HRT, treatment of diabetes mellitus before pregnancy to prevent microsomia। तो सारे जो हैं पॉजिटिव एजेंट हैं, ये प्रिवेंटेड, ये तो प्रिवेंशन है, ट्रीटमेंट नहीं। ठीक है जी। अब आ जाते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे क्या है, ये फिजियोथेरेपी, general increase in muscle tone, strength, hypertrophy of the existing muscle fibers, cortical awareness from elevated line। इसमें हम पेशेंट को क्या एडवाइस करेंगे, pelvic floor exercise, they are very helpful। अगर पेशेंट मोटिवेटेड हो और वो इसको कीनली ऑब्जर्व करे, कीनली फॉलो करे तो 50 to 75% केसेस में जो है ये pelvic floor exercises जो है ये pelvic tone को, pelvic muscles की जो tone है उसको दोबारा रिगेन करते हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाती है वजाइनल कोन्स। वजाइनल कोन्स जो है वो भी अगर उसमें इंसर्ट करके उसके बाद पेशेंट जो है पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करे तो उसके साथ जो है वो टोन जो है रिगेन हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है, टू प्रोवाइड सब यूरेथ्रल सपोर्ट, रिस्टोरेशन ऑफ द प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा एंड ब्लैडर नेक टू द जोन ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ट्रांसमिशन, इंक्रीज यूरेथ्रल रेजिस्टेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसमें जो ऑपरेशन किए जाते हैं उसमें प्रॉपर पहले पेशेंट को कोई भी जो है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए सर्जरी अगर करनी है तो यूरोडायनामिक स्टडीज आर मस्ट। आप उसके लिए पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे दें, आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज बता दें, फिर डायरी पे एडवाइस करें। ठीक है जी। लेकिन अगर पेशेंट को उससे फर्क नहीं पड़ा एंड शी वांट्स सर्जरी देन देयर शुड बी यूरोडायनामिक्स इन्वेस्टिगेशन बिफोर गोइंग फॉर द सर्जरी। में जो प्रोसीजर ऑफ द चॉइस है दैट इज द टीवीटी, ट्रांसजेनल टेप्स। इसमें क्या करते हैं, involves placement of the polypropylene tape under the mid-urethra to a single 1 to 2 centimeter interior vaginal wall in skin and to suprapubic skin. A needle introducer passed either side of the urethra to the vaginal skin and passed to the retropubic space, first to the insidator of suprapubic skin। यूरेथ्रा के इंटीरियर चैनल वॉल को ओपन करके दोनों तरफ से हम उसको सपोर्टिंग जो है टेप डालेंगे। सिस्टोस्कोपी इज परफॉर्म टू फॉर ब्लैडर इंजरी बिफोर पुलिंग द नीडल्स आउट टू द सबक्यूटेनियस स्किन। टेप इज अटैच्ड टू बोथ नीडल्स एंड कवर्ड इन अ पॉलीथाइलिन शीट allowing adjustment। ठीक है। वन adjusted tension free needles and polythene sheet, bring the tape at the level of the skin, then close the incision। Complication rate is low, success rate is 90% at 1 year, 80% at 10 year। इसका आपके लिए नाम याद करना ही काफी है। ठीक है जी। ये टेप की पिक्चर आप देख सकते हैं, डिफिकल्ट प्रोसीजर है। इस तरह ब्लैडर को दोनों साइडों से टेप इंसर्ट करके वजाइना में इंसिजन दे के सेज तक ला के इनको आपस में मिला दिया जाता है, उसका यूरेथ्रा को सपोर्ट दी जाती है। ठीक है जी। ये भी एक तरीके ऑप्शुलेटर अप्रोच से इसको सपोर्ट देते। ये आप देख सकते हैं किसमें
उसको जो है ब्लैडर को टेप्स के दोनों साइड पे लगा के उसको सपोर्ट। इसमें डिफरेंट मॉडिफिकेशंस भी है, लेकिन वो आपने जरूरी नहीं। अदर प्रोसीजर्स क्या उसमें करते हैं कि ब्लैडर नेक बल्किंग एजेंट्स। इंडिकेशन इज एल्डरली फ्राइल पेशेंट स्टार्ट नैरो वजाइना। इसमें कुछ बल्किंग एजेंट्स हैं जो कि उसकी साइड पे कर देते हैं ताकि जो स्यूजर है वो अलग हो जाए और उसकी जो है इनकॉन्ड है वो खत्म हो जाए। उसके अलावा लेप्रोस्कोपिक वाल्व सस्पेंशन भी की जाती है। अच्छा जी, अदर प्रोसीजर्स इंक्लूड आर्टिफिशियल यूरिनरी स्फिंक्टर, पेरीयूरेथ्रल इंजेक्शंस। ठीक है जी, इंडिकेशन ब्लैडर नेक एडिक्वेटली elevated and aligned with the pubic symphysis. Artificial sphincter are used when conservative conventional surgery fails. Patient mentally alert and manually dextrose. ये जो है artificial जो है sphincter जो है वो डालना है। ठीक है, पेरीयूरेथ्रल इंजेक्शन आप देख सकते हैं। टनलिंग टेक्निक इज यूज्ड टू इंजेक्ट मैक्रोप्लास्टिक एट द मिड यूरेथ्रल पोजीशन। द इंजेक्शन डिवाइस इंश्योर्स द कंट्रोल एंड प्रिसाइज प्रोसीजर। इससे यूरेथ्रा की जो है यूरेथ्रा सा नैरो हो गया, उसका मूवमेंट जो है क्योंकि बल्कि एजेंट यहाँ पर डाल दिया है उसकी वजह से वो इनकॉन्टिनेंस जो है वो थोड़ी सी पेशेंट की ठीक हो जाएगी। ये देख सकते हैं प्री इंजेक्शन यूरेथ्रा और अब ये पोस्ट इंजेक्शन होता है। लेकिन इसमें इस इंजेक्शन के बाद ये भी पेशेंट को टेंशन के साथ प्रेजेंट करें। और ये जी है आर्टिफिशियल यूरिनरी स्फिंक्टर, इस तरह ये इंसर्ट किया जाता है। ठीक है जी, पेरीयूरेथ्रल इंजेक्शन पिक्चर आप देख सकते हैं, बल्कि एजेंट लगाए जा सकते हैं। डिफरेंट प्रोसीजर है, आपके लिए नाम ही याद करना दैट इज इनफ, अगर आप ये याद कर लें। So today is the end of this lecture. Now in the next lecture we will discuss inshallah on Wednesday the user role activity.